टीआरएस हुकूमत की जानिब से इरम मंजिल को मुनहदम करने और नए सेक्रेटेरिएट की तामीर को रोकने के लिए अपोजिशन पार्टियों का इजलास मुनक्किद किया गया। जी विवेक ने इस इजलास को तलब किया था। इजलास में कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी और दीगर पार्टियों के अलावा कई तंजीमों ने शिरकत की। तमाम पार्टियों ने केसीआर हुकूमत के फैसले की मजम्मत की और हुकूमत के इक़दाम की मुखालफत की। उन्होंने टीआरएस हुकूमत के फैसले को अवाम मुखालिफ करार दिया। मौजूदा सेक्रेटेरिएट और इरम मंजिल को बचाने के लिए जिद्दोजहद करने का ऐलान किया। So one, we are unanimous on the view that we oppose this wasteful expenditure of public money on somebody's whims and fancies. Second, we should together, we are with you, we will also lead where required, we will also follow you where required, build a public opinion against this, on this subject. And I think regarding the legal recourse, మరి మీరు కూడా విశ్వేశ్వర గారు, ఐ మీన్ రేవంత్ ఇస్ ఆల్సో గోన్ టు ద హైకోర్ట్ అండ్ సత్యం రెడ్డి గారు, ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆల్సో relentlessly try to convince the judiciary that where such a huge wasteful expenditure is being done by a government. వ్యక్తిగతమైన సెంటిమెంట్ కోసం ప్రజల సెంటిమెంట్ను నిత్యం మైనారిటీ సోదరులు ప్రార్థనలు చేసుకునే మసీదును కూలగొడతాడు, ప్రతిరోజు ప్రజలు దండం పెట్టుకునే పోచమ్మ గుడిని కూలగొడతాడంట. అంటే ఇవాళ వ్యక్తిగతమైన నమ్మకాలకు కేసీఆర్ ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత ప్రజల యొక్క నమ్మకానికి ఇవ్వడం లేదు. రాష్ట్ర పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం సెక్షన్ 8 ప్రకారం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్న ప్రతి భవనానికి కస్టోడియన్ గవర్నరే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాదు. నేను నరసింహన్ గారికి సూటిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు కనిపించినప్పుడల్లా కేసీఆర్ మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు కదా అని మీరు దేవుడు ఆయన భక్తుడు అన్నట్టుగా వరాలు ఇస్తే మాత్రం కుదరదు. సెక్షన్ 8 ప్రకారం ఈ భవనాలన్నిటిని కాపలా గాయాల్సింది. దగ్గరలోనే సెక్రటేరియట్ ఉండే, అన్నిటికీ సెంట్రలీ లొకేటెడ్, ట్రాఫిక్ పరంగా కూడా మనకు ఎటువైపు నుండి కూడా ఒత్తిడి లేని వాతావరణం ఉండే. దీనికి ఒక రైము రిథిం లేదు, సౌండ్ రీజనింగ్ లేదు. ఎందుకు కూల్ చేస్తారు, ఎందుకు కొత్తది కట్టాలనే దానికి సమాధానం లేని స్థితిలో మాకు మెజారిటీ ఉంది కనుక మేము అనుకుంటున్నాం కడతాం. The High Court Chief Justice is saying, Professor Rao, I cannot intervene in what you are arguing. The Supreme Court of this country said we cannot interfere with the policy decisions of the government. I said, then why have a court? My argument is going to be very, very tough. No, why have a court? Both the judgments that I said, I'm quoting the... For Iram Manzil and shifting of the assembly, the same question was, this assembly was housing 294 MLAs and 120 or so MLCs, and it functioned without any complaint for 70 years. Now why suddenly you think that we should move out to Iram Manzil? तेलंगाना में केसीआर हुकूमत कुछ नया करने का मंसूबा रखती है। इसी के पेश नज़र प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में आला ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान वज़ीर आला ने नई अर्बन पॉलिसी तैयार करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। शहरी पॉलिसी के अलावा देही पॉलिसी और नए रेवेन्यू तरीक़ाकार को तैयार करने का मशवरा दिया। इसके अलावा वज़ीर आला केसीआर ने 2-3 दिनों में ड्राफ्ट तैयार करने का भी ओहदेदारों को मशवरा दिया है। इस इजलास में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के अलावा सरकारी मुशीर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी, स्पेशल सेक्रेटरी एस. नरसिंह राव, म्यूनसिपल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स के टीचर्स रियासती हुकूमत पर वादा वफा न करने का इल्जाम आयद करते हुए रियासतगीर सतह पर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। हैदराबाद टीचर्स यूनियन ने भी जिला कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी सरकारी टीचर्स का मानना है कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए कारपोरेट तालीमी इदारों की हिम्मत अफजाई कर रही है। टीचर्स ने खास तौर पर पे रिवीजन कमीशन के क़याम से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से किए गए वादे को पूरा न किए जाने पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। स्टेट टीचर्स यूनियन तेलंगाना 20 जुलाई को हैदराबाद में धरना चौक इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनक्किद करने का इंतबा दिया। असेंबली के अंदर जब क्वेश्चन पूछा गया तो वो ये कहे कि
मुल्क में नहीं सो ऐसी सैलरीज यहाँ के एम्प्लॉइज टीचर्स ले रहे हैं। हम यही सवाल पूछते हैं कि जब मुल्क के अंदर सैलरी नहीं है तो पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ के जो एम्प्लॉइज टीचर्स है वो लोग 27% हमारे से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। मुल्क में नहीं सो सैलरी यहाँ के MLAs MPs और क्या है बोले तो MLCs को भी मिल रही है, यहाँ पर क्यों वो सवाल नहीं उठता, हम ये पूछते हैं। हैदराबाद चूँकि एक ही मैनेजमेंट है, यहाँ पर दूसरे मैनेजमेंट का सवाल ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स है, कॉमन सर्विस रूल के नाम पर यहाँ के टीचर्स के साथ क्या है बोले तो नाइंसाफी करते हुए प्रमोशंस को रोक दिए गए। टीचरों के ऊपर क्या है बोले तो एक जहनी दबाव बना हुआ है। इसी वजह से आज क्या है बोले तो टीचर्स अपने क्लासरूम्स को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गए। ये कोई नया डिमांड नहीं है, CM साहब हमारे डिमांड्स को मान लिए सो है, मानने के बावजूद डिले करना क्या है बोले तो ये एम्प्लॉइज और यहाँ के टीचर्स के साथ क्या है बोले तो एक नाइंसाफी है। महानकाली बोनाल का आज से आगाज हो गया है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास ने सिकंदराबाद में वाक़े महानकाली मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि इस बार बोनाल त्यौहार को सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। बोनाल त्यौहार के सबब हुकूमत की जानिब से रकम भी जारी की गई है। इसके अलावा बस्ती के दीगर मंदिरों के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। वाज़ेह के रियासती वजीर टी श्रीनिवास हर हफ्ते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किद होने वाले बोनाल त्यौहार में शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना में बारिश कम होने से ज़ेर ज़मीन सतह आब में कमी आ गई है। कई इलाकों में मकीनों को साफ पीने का पानी भी मैसर नहीं। संगारेड्डी शहर में सूरत हाल काफ़ी संगीन नौयत इख्तियार करती जा रही है। पानी की किल्लत ने मामलात ज़िंदगी को शदीद मुतासर किया है। देखिए ये रिपोर्ट। संगारेड्डी टाउन में 31 वार्ड हैं। साल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक संगारेड्डी की आबादी 80,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। आपको बता दें कि हालिया अरसे में तेजी से जिन इलाकों का रकबा बढ़ा है उनमें संगारेड्डी सरे फहरिस्त है और अब शहर में लाखों अफराद आबाद हो चुके हैं। हालिया अरसे तक संगारेड्डी को मांजरा नदी से पानी सप्लाई किया जाता था। मांजरा बैरेज में सतह कम होने से संगारेड्डी के मकीनों के लिए पानी का बड़ा मसला खड़ा हो गया है। बल्दिया शहर में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई कर रहा है, लेकिन दरकार मकदार से काफी कम पानी सप्लाई किया जा रहा है। हालिया अरसे में पानी की किल्लत के सबब कई लोगों ने किराए के मकान छोड़ दिए हैं। कुछ दिनों से बल्दी हुकाम ने पीने का साफ पानी मुहैया कराने का काम भी रोक दिया है। लोगों ने शिकायत की है कि कई दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। लोग बारिश का पानी बर्तनों में जमा करके नहाने के अलावा दीगर जरूरियात पूरी कर रहे हैं। पानी की किल्लत स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा की तालीम पर असरअंदाज हो रही है। यहाँ लोग मुनासिब मकदार में पानी दस्तयाब कराने की मांग कर रहे हैं। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों के मकीनों ने नए बोरवेल्स खुदवाने और नलकों से पानी सप्लाई करने का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद के इलाके वेंकटगिरी में मियाँ बीवी मुश्तबा तौर पर झुलस कर खाकस्तर हो गए। बताया जाता है कि नेपाल से ताल्लुक रखने वाले ये जोड़ा, जिनकी शिनाख्त रमेश और रीटा की हैसियत से की गई है, 6 साल कबल इन दोनों ने शादी कर ली थी और शहर मुंतकिल हो गए थे। इलाका वेंकटगिरी में एक मकान के बालाई हिस्से में मुकीम थे। मियाँ बीवी दोनों फास्ट फूड सेंटर में काम करते थे। गुज़श्ता 2 दिनों से इन्हें बाहर नहीं देखा गया। तहम बीती रात में इनके मकान से धुआं और आग के शोले देखकर पड़ोसी चौकस हुए और फौरी पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने फायर सर्विस को तलब कर लिया। तहम उस वक्त तक दोनों जलकर खाकस्तर हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। और खबर तफसील से मरकजी ममलिकती वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने तिरुपति में बीजेपी की रुकनीत साजी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अपने खिताब के दौरान प्रकाश जावड़ेकर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमकर सताश की और कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करते हुए इख्तिदार हासिल किया था। अब जबकि बीजेपी से दूरी इख्तियार की तो अवाम ने उन्हें इख्तिदार से बेदखल कर दिया। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि मोदी के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद अपोजिशन के खेमों में खलबली मची हुई है। Let me tell you, it is not 38% because that's an all India figure. In 17 states, BJP has got more than 50% vote, 50% vote. Congress in 70 states has not won even a single seat. That is the decisive victory. Last time in Andhra Pradesh, I was here for 4 months
patching up with TDP, and because of Narendra Modi's support, TDP came to power. Now they are out of power. And what this election tells in Andhra Pradesh, if or anywhere, if you abuse Prime Minister Narendra Modi, you will be out of power. Telangana, therefore, preponed their assembly election because they knew if the elections would have been simultaneous, they would not have got clear majority. Opposition parties, after defeat, have gone on vacation. Your opposition bankruptcy is very palpable. They are on vacation. They are not doing act together. Nobody knows who is the Congress president. Do you know? We are the world's largest party with 11 crore members. We have to go everywhere. We'll reach all sections of society, youth, and everybody will make members. ख़वातीन, किसानों और देही इलाकों के नौजवानों की तरक्की के लिए स्वर्ण भारत की जानिब से की जा रही खिदमात काबिल सताइश है। ये कहना है मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी का। कृष्णा जिले में स्वर्ण भारत ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में किशन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान 10वीं जमात में 100% निशानात हासिल करने वाले तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। किशन रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में देही इलाके तरक्की के समत आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के इदारों को चाहिए कि वो हुकूमत के साथ मिलकर काम करें ताकि देही इलाकों में तब्दीली आ सके। सबके साथ सबका विकास सबका విశ్వాస్ ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ ఆలోచన విధానం తప్ప ఎవరిని మేము దేశపూరితంగా చూడము। అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఉండాలి। ప్రజలే ఈరోజు మార్పులు కోరుకున్నారు। అన్ని రాష్ట్రాలలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు కుటుంబ పార్టీలను ప్రజలు ఓడించారు। ముఖ్యమంత్రుల కొడుకులను, ముఖ్యమంత్రి కూతుళ్లను, ముఖ్యమంత్రుల మన్మనలను, ప్రధానమంత్రి మన్మలను ప్రజలు ఓడిస్తే అది భారతీయ జనతా పార్టీ దోషిగా అనడం తప్పు। इंसाफ का मुतालबा करते हुए 2008 डीएससी के उम्मीदवारों ने सीएम कैंप ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली में वाक़ सीएम कैंप ऑफिस के बाहर धरना दिया। एहतजाजी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का कहना है कि साल 2008 में 4000 से ज़्यादा एसजीटी असामियों पर भर्ती के लिए असनादात की जांच भी मुकम्मल की गई थी। इसके बावजूद उन्हें रोजगार से दूर रखा गया। बरहम एसजीटी उम्मीदवारों ने इंसाफ का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया। इस एहतजाज में महकमे सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल आंध्र प्रदेश की जानब से हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफाई जिलानी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज चंद फ़िरक़ा परस्त अफराद मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और पुरअमन हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कोई भी शख्स या तंजीम नहीं तोड़ सकती। इस इजलास में रियासती मिली काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल कदीर और दीगर मकामी दानिशवरान शरीक रहे। के मौजूदा जो तशवीशनाक हालात हैं उसके तनाजुर में हम लोगों को लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी क्या लाए अमल बनाना है वो बाहमी सलाह मशवरे से हमको उसकी सोच करनी है, उसकी फिक्र करनी है, उस पर गौर करना है। माशाअल्लाह ऑल इंडिया मिली काउंसिल मणिपुर से लेकर केरला तक तमाम 28 रियासतों में कायम है और 27 साल पहले से उसकी तश्कील और तंजीम हो चुकी है। के हालात हैं बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं और ख़ास तौर पर मुल्क का दस्तूर और इसका जो सेकुलर ढांचा है ये खतरे में महसूस किया जा रहा है। तो उस दस्तूर की हिफाजत के लिए, मुल्क के सेकुलर ढांचे की हिफाजत के लिए एक मुत्तहदा मेहनत की ज़रूरत है जिसमें मुसलमानों के तमाम तबक़ात को भी शामिल करना है और दूसरे तबक़ात के अहबाब को भी साथ लेकर चलना है। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूल करने की अहम वजह कानून हक़ तालीम पर अमल नहीं करना है।
ان خیالات کا اظہار سلیم بادشاہ نے کیا. انہوں نے قانون حق تعلیم کو زمینی سطح پر اتارنے کی مانگ کی اور ڈی ای او کرنول کو ایک یادداشت پیش کی اور پرائیویٹ سکولز میں مسلم اور دیگر پسماندہ طبقات کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کی مانگ کی اور ساتھ ہی انہوں نے تعلیم کو تجارت بنانے کی مخالفت کی. کرنول ڈسٹرکٹ میں رائٹ ٹو ایڈوکیشن 2009 میں یہ سینٹرل گورنمنٹ ہمارے واسطے بہترین ایک ہتھیار دی, مگر یہ ہتھیار یہاں کام نہیں کر رہا. ذرا اسکولہ نام کے واسطے بول رہی ہیں, ذرا اسکولہ تو ہماری امپلیمنٹ نہیں کر سکتے بول رہی ہیں. یہ آرٹی رائٹ ٹو ایڈوکیشن کی طرف سے کیا 25% SC ST BC مائنورٹی لوکل والوں کو دینا ہے اور ان کے نوٹس بورڈ میں رکھنا ہے. ہر برس فیساں بڑھا ڈال رہی. ہمارے CM بھی بولے جگن موہن ریڈی విద్యా సేవ కాదు, విద్యా వ్యాపారం కాదు, విద్యా సేవనే అన్నారు. और वो बात इन तक पहुंचाने के वास्ते हमें सब मिल जा को DO ऑफिस के पास आ गए. हमें इनके एक रिप्रेजेंटेशन दे डाली, AD मैडम को दे डाली. इनके तरफ से गवर्नमेंट तक जाको ये विद्या हक्कु चट्टम अमल చేయాలి. ये मेन है इम्प्लीमेंटेशन टू ये राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में आगे हमें ये इनको आको एक रिप्रेजेंटेशन दे डालें. अब देखना है ये ऑफिसर्स क्या काम करती और कहां तक ये काम होता है इंशाल्लाह. आधुनिक अंडरपेड गर्ल्स हाई स्कूल में उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा में तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई. इस मौके पर 5 उर्दू मीडियम स्कूल्स, अंडरपेड गर्ल्स हाई स्कूल, न्यू बाहरपेट उर्दू स्कूल, मां साहिबा मस्जिद उर्दू स्कूल, खूनी मोहल्ला उर्दू एलिमेंट्री स्कूल, सैयदपेट उर्दू स्कूल के तलबा में स्लेट्स और नोट बुक्स तकसीम की गई. जिला करनूल के मंगनापल्ली में MIM पार्टी के जिम्मेदार मोहम्मद इस्माइल की जानब से 3 उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा में तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई गई. उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से MIM पार्टी की जानब से तालीमी अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है. इस मौके पर पुलिस एहलकार व दीगर MIM लीडर शरीक थे. यही है कि हमारे सदर अलहज बारिश रसूलुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए उनकी हिदायत पर आज हमें उर्दू स्कूल को गाँव में 3 स्कूल हैं तो 3 स्कूलों को डोनेट करे हैं. लेकिन ये पहले टाइम हमारे मैडम के जरिए पहले टाइम हमें यहाँ प्रोग्राम रखना बोल को एक इरादा करे हैं. 100 वर्कर्स और पार्टी वर्कर्स मिलके उसमें हमारे जनाब शिवानंद साहब को भी इन्वाइट करे हैं और हमारे मैडम MBO मैडम को इन्वाइट करे हैं. उन ये प्रोग्राम का इसको हम पूरे पार्टी की तरफ से और टीचर्स की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. करनूल उस्मानिया कॉलेज में UGC के ज़र एहतमाम हेल्थ केयर पर मालूमाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज नवाज ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की. उन्होंने बताया कि सेहत इंसान के लिए अल्लाह ताला की अजीम नेमत है. अगर इसको बरकरार रखना है तो हम अपने अपने इलाकों को पाक व साफ रखना होगा. इस प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल सैयद मकबूल, सैयद समी और दीगर शरीक रहे. सबसे पहले हवा, तो तिब्बे यूनानी में और तिब्ब में जो है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है. खुली हवा में रहना बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखने का बायस बनता है. तो ये फ्रेश एयर की वजह से, जैसा अभी मैं बोल रहा था कि अगर आप सिंपल अभी मोबाइल का एक बुरा असर जाहिर करा मैं कि इफ यू आर अनहेल्दी, वाई अनहेल्दी बोल के बोला मैं, बिकॉज कीपिंग मोबाइल नियर अस इट इज ए unhealthy thing which we are regularly following it. स्वच्छ सुरक्षण के तहत राजा महेंद्रवरम में मैराथन का एहतमाम किया गया. ONGC और राजमंड्री म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रैली निकाली गई. मकामी कॉलेज तक पुष्कर घाट तक मैराथन मुनक्किद हुआ. राजमंड्री के MP M भारत ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैली को झंडी दिखाई. रैली में ONGC ओहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे. MP भरत ने राजा महेंद्रवरम शहर को साफ सुथरा रखने के लिए हर शख्स से आगे आने की अपील की. अनंतपुर के इलाके गुंतकल में शादी के घर में मातम मच गया. गुंतकल के रेलवे इंस्टीट्यूट में शादी तकरीब के दौरान रात में शादी में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों का 60 तोले सोने के जेवरात चोरी हो गए, जिसकी मौजूदा कीमत 18 लाख रुपए बताई जा रही है. मुतासरा खवातीन का कहना है कि वो रात 3 बजे तक रस्म रिवाज में मसरूफ थे, जिसके बाद सो गए. इस दौरान नामालूम अफराद शादी के मकान में दाखिल होकर सोने के जेवरात पर मुश्तमिल सूटकेस लेकर फरार हो गए. वन टाउन पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया.
मशरक़ी गोदावरी के एलूर में सीआरपीएफ जवान ने खुदकुशी कर ली। 26 साल एम गोपीनाथ गुज़श्ता 2 साल से मेघालय की सरहद पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। वालिद की सेहत खराब होने के सबब 3 दिन कबल वो अपने आबाई मकाम आया हुआ था। इस दौरान बीती रात उसने कीड़ा मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद अफराद खानदान ने गोपीनाथ को एलूर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान आज गोपीनाथ की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।